کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے تاثرات ہمیں ملتے ہیں، اور ان تاثرات کو دیکھ کر ذہن بھی بنتا ہے کہ ہمیں مدنی مذاکروں میں شرکت کرنی چاہیے، اور کیونکہ تاثرات میں اسلام بھائی نے کیا سمجھا، کیا سیکھا ہوتا ہے، کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ ہم تاثرات میں دکھاتے رہتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ تاثرات دیکھنے کا موقع ملتا ہے جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ آئیے تاثرات دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا رسول کی آمد، مرحبا مختار کی آمد، مرحبا بشیر کی آمد، مرحبا مرحبا جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی، مرحبا آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ۔ اجتماع میں ماشاءاللہ آتے ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ پیارا اجتماع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بیانات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری زندگی میں بہت فرق پڑا ہے۔ پیر صاحب کے بات سنے جس طرح ماشاءاللہ سورۃ الاخلاص کے بارے میں اور دین کے بارے میں یہ سب ہم نے سنا ہے، بہت اچھا لگا۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں جو لوگ آزمائش میں آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ہمیں۔ 12 ربیع النور شریف کا معاملہ جہاں تک آتا ہے تو وہاں پر دعوت اسلامی کی تو اپنی پیشانی ہے۔ آپ جو ہے نا وہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے لے لو، آپ محفلوں کے انعقاد کے حوالے سے لے لو، میلاد النبی کے جلوس کے حوالے سے لے لو، ہر طریقے سے دعوت اسلامی فرنٹ پہ کھڑی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے، تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں کو بھی سجانا چاہیے۔ انہی کی وجہ سے دنیا بنی، انہی کی وجہ سے کل کائنات کو سجایا گیا ہے۔ دعوت اسلامی یہ مطلب دن کا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، لوگوں کو اچھی طبیعت دے رہی ہے ماشاءاللہ۔ جو باتیں ہی نا حضرت نے وہ بالکل ایسی ہیں جیسے راہ مستقیم کی طرح، ابھی ہمارے کام اس پہ عمل کریں، آپ باوجود رہیں کثرت دوشی پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم تو بہت تیاری کرتے ہیں، ادھر پرچم لگاتے ہیں، جھنڈے ہوتے ہیں اور میلاد جلوس نکالتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے پالیسی پر چلیں، شریعت کے پابند بنیں، ہم آقا کا میلاد بنائیں۔ اور میں یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ مدنی مذاکرے میں بھی ضرور شرکت کرنی چاہیے، تو اس میں بھی کثیر چیزیں ہمیں سیکھنے کو موقع ملتا رہے گا۔ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی نیتیں کروائیں، اور دین کا درد ایک وہ کہ کس طرح دین کا کام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں ربیع الاول منانے کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، انشاءاللہ عزوجل اس کے مطابق ہی انشاءاللہ ہم جشن ولادت منائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے ان کی دین کی تکالیف اور ان کا وہ دین کی خاطر صعوبتیں، مشکلات، تکالیف برداشت کرنا، اس حوالے سے بڑا مفصل بیان ہوا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، نمازوں کا شوق پیدا ہوگا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سنیں گے، انشاءاللہ گھر میں بھی مدنی ماحول بنے گا۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی صحبت میں رہ کے ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی مذاکرہ اجتماع میں شرکت کر کے مدنی ماحول بھی ہے اور دعوت اسلامی کی ذمہ داری بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے اجتماع جو کہ حضور پیر سید بلے شاہ سرکار کے عرس کے سلسلے میں ہے، اس میں حاضر ہوئے۔ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے لائیو ان کا چلتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی، اور انشاءاللہ اس میں اپنے دوستوں کو اور تمام اسلامی کو شرکت کی دعوت بھی دیں گے کہ آپ بھی ان اجتماعات میں شرکت کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ امیر سنت سے عرض ہے کہ استقبال ماہ میلاد، استقبال ماہ ربیع الاول کے لیے جمع ہیں، اور ہمارا مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے۔ میں چاہوں گا اگر ابتدا میں ہی آپ استقبال جس کو ہم کہتے ہیں کہ مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے، ماہ مبارک آنے والا ہے، چاند نظر آنے والا ہے، استقبال کے لیے جماعت، استقبال کے لیے ہمیں کیا کیا نیت کرنی چاہیے، کیسے استقبال کرنا چاہیے اس ماہ میلاد کا، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ یہ سب جذبہ کروائے گا، وہ کہاں سے ملتا ہے استقبال؟ جس کو جذبہ ہوتا ہے وہ سارا سال انتظار کرتا ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف آئے گا اور یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے۔ اب جو سجاوٹ کی ہے نا، تو یہ استقبال، خوشی، استقبال، ادب، احترام، تعظیم، محبت، ان سب کا اظہار ہے اس میں۔ اب یہ سب ہو اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔
تو میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ماہ میلاد ہے، یعنی اگر ہم مبالغ آپ کے تو خیر زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ کیسے کیسی رونقیں اور ماشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. غالباً بھائی یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کی برکت سے کئی گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر آئیں. میلاد منانے کا جذبہ انہیں نیکی کے راستے پہ لے آیا. کیا فرماتے ہیں؟ بجا فرمایا آپ نے، بالکل بجا فرمایا کہ کئی لوگوں کی مطلب اس میں اصلاح کی صورت ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کا ہی واقعہ ہے. دعوت اسلامی میں تو 12 دن کے لیے داڑھی رکھی گیا کہ وہ چاند رات سے اب 12 دن تک داڑھی رکھوں گا. تو پھر وہ انہوں نے نہیں کٹوائی. تو آپ ان کو جانتے ہیں. مجھے میرے ایک اور ان کے دوست ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار مجھے حیرت ہوتی ہے یہ وہی ہے جو ایسا سدھر گیا ہے، مجھے یقین نہیں آتا. تو یوں جشن ولادت کی خوشی میں اس نے 12 دن داڑھی رکھی اور پھر یہ کہ الحمدللہ میری آخری ملاقات تک تو داڑھی ہے اس کی. اب تو خیر وہ نانا دادا بن گئے ہوں گے، اپنے ماحول کے ہی ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک جس کو ہدایت دے. تو فوائد کا تو انکار ہے ہی نہیں نا. جشن ولادت منانے کے فائدے کا سورج آب و تاب سے چمک رہا ہو تو اس کا انکار تو اندھا ہی کر سکتا ہے، آنکھ والا تو کبھی نہیں کر سکتا. کار ثواب ہے اور اس بہانے درود و سلام پڑھے جاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان ہوتا ہے، سنتوں کے بیانات کیے جاتے ہیں، مسجدوں میں رونق ہوتی ہیں اور خوب ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں. تو ثواب کے بہت سارے کام جشن ولادت میں کیے جاتے ہیں اور کام کرنے بھی وہی ہیں جس میں ثواب ملے. باقی اب کوئی اگر اس میں مسئلے کرتا ہے، الٹ پلٹ معاملات کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے بعض لوگ سنا ہے کہ وہ میوزک بھی کرتے ہیں، اچھل کود اس طرح کی کرتے ہیں جسے وہ نہیں کرنی چاہیے. باہر اچھل کود منع نہیں ہوتی، لیکن بعض اچھل کود لچکے توڑے کے ساتھ ہوتی ہے. لچکے توڑے کے ساتھ جو ہے نا وہ اصل ڈانس ہوتا ہے، ڈانس حرام ہے. اب یہ کہ ہر طرح کے لوگ گھس جاتے ہیں اس میں. جیسا وہ دریا میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور جال پھینکو تو کیکڑے بھی آ جاتے ہیں، تو بعض اوقات دریائے سانپ بھی نکل آئیں گے، تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو اب یہ کہ سمندر ہی ہے انسانی، اس میں کئی لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو سمجھایا جائے. جشن ولادت خوب منایا جائے اور دھوم دھام سے منایا جائے اور بڑھ چڑھ کر منایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ہی کنگھی استعمال کریں گے تو ان میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یا مرشدی میرے والدین کے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا فرما دیجیے. اللہ پاک ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. ایسا کہیں پڑھا سنا تو ہے نہیں کہ میاں بیوی ایک ہی کنگا استعمال کریں تو اس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو ویسے ہی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے. کم ہی گھر ہوں گے جن میں واقعی امن قائم ہو، کیونکہ بے عملی بہت ہے، گناہ بہت ہو رہے ہیں. تو گناہوں کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر تہمت رکھتے ہیں، بعض اوقات معاذ اللہ بدگمانی کرتے ہیں، تو یوں بھی یہ لڑ پڑتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ایک سوال موصول ہوا ہے، امیر اہل سنت جو بیٹے شادی کے بعد والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ عموماً والدین کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، مگر جو اولاد ساتھ نہیں رہتی وہ والدین کی کس طرح خدمت کریں، کس طرح خیال رکھیں، اور اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے ماہانہ کتنی رقم مقرر کریں کہ وہ اپنے اخراجات مکمل کر لیں؟ دیکھو اخلاقی طور پر تو جو کچھ اولاد کے پاس ہے نا، سمجھو ماں باپ کے لیے اس کا تو منہ کھلا رہنا چاہیے خزانے کا. تاہم یہ کہ
अगर माँ बाप मोहताज हैं, मोहताज हमारे यहाँ उर्फ अवामी उर्फ में हाथ पैर जिसके काम ना करते हो, लूला लंगड़ा नाबीना हो, उसको बोलते हैं। तो हकीकत में मोहताज ये नहीं है, बल्कि मोहताज वो है कि जो मतलब जिसके पास खाने पीने को ना हो, है ना। तो अगर माँ बाप ऐसे हैं कि तंग दस्त हैं, खाने पीने के लिए उनके पास नहीं है खराजात, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो ये औलाद पर वाजिब होगा कि ये अपने माँ बाप की ये ज़रूरत पूरी करे। अब इसमें ये नहीं है कि कितनी मिकदार में, अब यहाँ तो हम तो पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं, यहाँ तो हमारे यहाँ रकम इस करेंसी भी अलग अलग है, तो जितनी ज़रूरत है ना नफका ना मकान की ज़रूरत है, मकान देना होगा, औलाद पर है कि वो इन औलाद भी दे सकती हो, दर इसके लिए उसको ये नहीं कहा जाएगा कि चोरी करके लाए, वो दे सकती हो। इसी तरह खाना पीना, कपड़े, जो मतलब एक उर्फ में एक दरमियाने अंदाज में जो होते हैं, तो वो उसको मतलब करना होगा। अगर वो खिलाएगा पिलाएगा नहीं और वो है मोहताज खाने पीने के, ज़रूरतमंद है, तो औलाद गुनाहगार होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं, कह रहे हैं मदीने का तसव्वुर और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर किस तरह किया जा सकता है, और एक नाबीना शख्स किस तरह ये तसव्वुर करे? तो तसव्वुर तो आँखों से नहीं देखा जाता ना, वो तसव्वुर आंखें बंद करके किया जाता है आमतौर पे। तो वो नाबीना की ऑलरेडी पहले से आंखें बंद है। तो मदीना पाक का तसव्वुर तो हमारे यहाँ ख़ास मौक़ों पर किया जाता है, जैसे कि अभी महफिल मदीना हुई थी, उसमें भी किया गया था। इसके भी यानी कैसेट वगैरह ज़ाहिर के अंडरस्टूड होंगे, और मुख्तलिफ पेजेस पर भी तसव्वुर का तरीक़ा मौजूद होगा। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक हुलिया है, यानी चेहरा मुबारक, कान मुबारक, भवें मुबारक, आँखें मुबारक, जुल्फ़े मुबारक, इमामा शरीफ, दाढ़ी मुबारक, तो ये सब मतलब है कि होंठ मुबारक, जो बदन ये चेहरे मुबारक के से उन सब को मतलब पढ़ कर, जो सब किताबों में लिखा हुआ है, को पढ़ कर ज़हन नशीन करे, वह आंखें बंद कर के इसी पर गौर करे और देखने की कोशिश करे तसव्वुर में कि यूं चेहरे मुबारक है, मुस्कुराते हैं तो यूं फूल झड़ते हैं। मुस्कुराने में फूल झड़ने से मुराद ये फूल झड़ना ये एक मतलब मुहावरा है, वाकई यानी कि वो गुलाब के फूल नज़र नहीं आएंगे, तो यूं फूल झड़ते हैं, मुस्कुराते हैं तो बात करते हैं तो इस तरह आपकी निगाहें मुबारक होती हैं, तो इस तरह मतलब अल्फाज का अंदाज होता है, आवाज़ का इस तरह उतार चढ़ाव होता है। तो यूं मतलब ये कि अगर बंदा गौर करता रहे तो तसव्वुर इतना बेहतरीन कायम हो सकता है। ये ज़हन में रखें कि जिस चीज़ को इंसान तसव्वुर में दोहराता रहता है ना, वो ख्वाब में उसको नजर आती है। तो इसी तरह मतलब अगर मदीना और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर इंसान बांधता रहे अकीदत के साथ, तो इंशाअल्लाह क्या बईद कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे उसे नजर आ जाए। जलवे खुदाएं तालिबे दीदार की तरफ। आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, जलवे खुदा तालिबे, जलवे खुदा तालिबे
دیدار کی طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف. دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ دیدہ. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ دیدہ. احمد عرض کر رہا ہوں، اگر کسی نے سنا سنی چاند کے نظر آنے نہ آنے کا اعلان کر دیا حالانکہ فیصلہ کچھ اور ہی آیا تو اس کا ازالہ کیسے کرنا ہوگا؟ جب فیصلہ آیا تو آج کل کے دور میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے. اصل میں یہ حضور ہوا یہ ہے جو البتہ یہ یہ کسی سوال جو آیا آپ کو، مجھے ایسا لگ رہا ہے آج کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے مطلب کہ وثوق کہنے والے جیسے کہ وثوق انداز میں ایک پورے اعتماد انداز میں چاند مبارک کی انہوں نے پوسٹیں چلائیں. تو میں نے کسی کو لکھ کر بھیجا کہ ابھی تک چاند کا نظر آنے کا اعلان نہیں ہوا، پتہ چل رہا تھا. تو اب ان کا رپلائی او یہاں تو بڑے بڑے گروپوں میں چل رہی ہے کہ چاند نظر آ گئے، چاند نظر آ گیا. تو یہ ہوتا ہے ایسا کہ وہ کوئی چلا دیتا ہے، تو چونکہ یہاں تصدیق کا ذہن نہیں ہے، اس پر باقاعدہ یہ آج ذہن بنا لیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر آنے والی پوسٹوں کو جو ہم بغیر تصدیق کے وائرل کر رہے ہوتے ہیں، خود آج کی تاریخ دیکھ لینا کہ آج چاند نظر نہ آنے کا اعلان اب ہو چکا کہ چاند نظر نہیں آیا. اب جنہوں نے پوسٹیں چلا دیں اور ان کی دیکھ کے جنہوں نے پوسٹیں چلا دیں اور یہ کہہ کر چلا دیں بڑے بڑے گروپوں میں ہو رہا ہے، تو بڑے بڑے گروپوں میں یہ بڑا بڑا رونگ نمبر لگ رہا تھا. بعض اوقات تو بڑے بڑے لوگ بھی وہ اچھا پھر اگر بڑا آدمی جو ہو نا وہ بھیج دے گا نا کسی کو پوسٹ تو وہ تو اس پر تو اعتماد ہو جاتا ظاہر ہے کہ اس نے بھیجا مجھے، پھر اس کی صحیح کی بے عزتی ہوتی ہوگی کیونکہ بولتے ہو نا میں کیا کروں یار مجھے تو اس نے بھیجا تھا. تو یہی ہے کہ جب تک کنفرم نہ ہونا تو آدمی چپ رہے بولے نہیں تو رہواتا نہیں ہے. اب میں یہ بھی عرض کر دوں نا کہ دیکھنے سننے والوں کو کہ آپ مدنی چینل کی اسکرین کو دیکھ لیا کریں. یہ یوں سمجھے کہ یہ تو میں لاکھوں کو عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس مدنی چینل جیسے فیس بک پر بھی مدنی چینل ہے، یوٹیوب پر بھی مدنی چینل ہے، مدنی چینل کی اپنی اپلیکیشن موجود ہے تو آپ موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. کم از کم یہی دیکھ لیں کہ یار مدنی چینل پر ڈیٹ آ گئی، کیونکہ مدنی چینل جب بھی ڈیٹ چینج ہوگی تو مدنی چینل پر آ جائے گا. جب تک نہیں آیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی تک مدنی چینل پر ہم نے تاریخ دیکھی نہیں ہے، تو مدنی چینل پر دیکھی نہیں ہے تو آپ اعلان بھی نہ کریں. اللہ پاک نے چاہا تو مدنی چینل کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ باقاعدہ ایک تصدیق کے ساتھ ہی اس کو لے کر چلیں گے. رابطے تو کسی نہ کسی حد تک ہوتے ہی ہیں. تو میری سب سے یہ درخواست ہے کہ کیسے پتہ چلے تو مدنی چینل زندہ باد. اچھا نسخہ یہ ایک نشان، شکل، ڈیزائن یا لفظ جان بوجھ کر جلد پر لگایا یا رکھا گیا جو جلد کے نیچے روغن یا رنگ ڈالنے سے پیدا ہوتا ہے. اس میں لوگ الفاظ لکھواتے ہیں، کوئی سمبل یا مخصوص نشان بنواتے ہیں، کوئی تصویر بنواتے ہیں کسی انسان کی، کسی جانور کی یا کسی جاندار وغیرہ کی. مغربی دنیا میں اس کو بنوانے کا رواج عام ہے. اس کو انسانی اظہار یا پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. دنیا میں قریب 20% آبادی کے جسم پر ٹیٹو موجود ہیں. اسے بنوانے میں انفیکشن کا خطرہ
ہوتا ہے बनवाने में एक दिन या कई दिन भी लग सकते हैं। ये खाल की दूसरी तह में इंक या रंग डालकर बनाया जाता है। बनवाने के बाद मिटवाना एक इंतहाई मुश्किल काम है जिसमें सर्जरी या लेजर दरकार होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी ये रुझान बढ़ रहा है और कराची समेत पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में टैटू पार्लर बन चुके हैं। एक अखबारी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 23 से 35 साल की उम्र के लोग टैटू बनवा रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत आपसे सवाल है, आजकल जो नए फैशन के तौर पर मर्द औरत टैटू बनवाते हैं इसका क्या हुक्म है और बदन में टैटू होते हुए वुजू और गुस्ल होगा या नहीं? यूं ही नमाज का क्या हुक्म है? आम लोग या न्यू मुस्लिम जो टैटू बनवा चुके हैं, अब अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो तो इसका इजाला कैसे किया जाए? नौजवानों को इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? टैटू बनवाना ये जो हमारे यहाँ जिस तरह बनवाए जाते हैं कि खोद कर इसको बाकायदा इसके अंदर ये भरा जाता है मवाद, तो ये बनवाना शरअन नाजायज़ व हराम है और हदीस पाक में इस पर लानत आई है जो इस तरह करता है। तो शरअन ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब अगर ये इस तरह के बना लिए गए हैं कि इनको मिटाना बग़ैर ऑपरेशन के मुमकिन नहीं है, बग़ैर अज़ियत पहुँचे, बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ पहुँचे मुमकिन नहीं है, तो इस सूरत में इनको ख़त्म करना यानी ऑपरेशन इसके लिए करवाना ये लाजिम नहीं है। लेकिन ये जो मालूमात है उसके मुताबिक 2-3 तरह के ये बनते हैं, जिसमें एक जो है वो इस तरह का होता है कि जो बग़ैर ऑपरेशन के भी उसको मिटाना ये मुमकिन होता है। बाज़ औक़ात इसको सिर्फ ऊपर से ही कलर किया जाता है, तो जो इस तरह के होंगे फिर उसको मिटाना ये ज़रूरी होगा, ख़त्म करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर इस तरह के हैं कि बाकायदा इसको जिस्म में सुई के ज़रिए खोद कर फिर उसके अंदर डाला जाता है, कलर भरा जाता है उसमें, तो वो बग़ैर ऑपरेशन के ख़त्म नहीं होते। तो जो बग़ैर ऑपरेशन के ख़त्म नहीं होंगे उनको ख़त्म करवाना लाजिम नहीं है। अलबत्ता हत्तल इम्कान ये कोशिश करते रहें कि मुसलमानों के सामने ये ढका हुआ रहे, छुपा हुआ रहे, उनके सामने ये ज़ाहिर ना हो। बदन में टैटू होते हुए वज़ू और गुस्ल होगा या नहीं होगा? तो वज़ू और गुस्ल तो हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अब जिस्म के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। अब जो पानी बहेगा ऊपर वो ऊपर ही से बहेगा। असल तो ये है कि पानी ये जो जिल्द होती है उस तक पहुंचना चाहिए। तो अगर तो ऐसा है कि ऊपर ही उसके ऊपर कोई कलर किए गए हैं जिनको हटाकर पानी जिल्द तक पहुंचाना मुमकिन है तो फिर हटाना ज़रूरी होगा, लेकिन आम तौर पे ये इस तरह के होते नहीं हैं। तो वज़ू गुस्ल इससे हो जाएगा, लेकिन बहरहाल इससे तौबा करना ये लाजिम है, बंदा तौबा करे, और अगर आसानी से इसको ख़त्म करवाना मुमकिन हो तो फिर उसे ख़त्म करवाना भी ज़रूरी होगा। हुज़ूर, आप नौजवानों को इस हवाले से क्या पैगाम इरशाद फरमाते हैं? नौजवान ही नहीं है, यानी दुनिया भर की अगर मैं बात करूं तो क्या नौजवान, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या उधेर सब लगा रहे हैं, सब मिले हुए हैं। टैटू वाकई यानी कि जब एक गुनाह का काम है टैटू बनवाना, तो जो लोग बनवाते हैं उनको बनवाना तो नहीं चाहिए। तो बनवा लिए तो तौबा करे, और जो मुफ्ती साहब ने तरीका बताया कि अगर निकल सकता है कि ये मुख्तलिफ किस्म होती है, मुख्तलिफ इसकी सूरतें होती है टैटू की। अब बात टैटू तो एक नॉर्मल होते हैं, बेजान चीज बनवाई तो उसमें हुक्म इसका कुछ होगा, नाजायज तो ये भी है, लेकिन ये कि बाद वो जानदार चीजें बनाते हैं, जानदार की तस्वीर बनाते हैं, तो इसका अंडर शूट हुक्म सख्त हो जाना चाहिए कि ये जानदार की तस्वीर बना कर लिए फिर रहा है, पीठ खुली रखते हैं, हाथ खुले रखते हैं, इसके लिए जो घुटने खुले रखते होंगे, बहुत कुछ करते हैं, सांप बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। पहले होता था तो खाली लोग नाम लिखवाते थे, किसी जमाने में वो बस यही सुई से उसमें सुरमा भरा जाता था, फिर लगाते थे। और बाकी ये जो अब दुनिया में इतना जो आम हो गया, तरह तरह की तस्वीरें लगाई जा रही है, शायद ये बाद की इजादें हैं। तो इनसे तो सबको बचना चाहिए, फौरन तौबा करें। और लिबास फिर इस तरह, अगर ये उतर नहीं सकता तो ऑपरेशन तो कराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि ऑपरेशन से निकाले, तो फिर ये कपड़े में इसको छुपा के रखे लिबास के अंदर, ताकि लोग ये ना देखें, क्योंकि एक तो गुनाह का ऐलान है ना कि इसने ये गुनाह किया हुआ है, और तौबा तो इस पर फर्ज है। अब वो सबको कोई भी पूछेगा तो बोलना होगा कि मैं तौबा कर चुका, लेकिन अब जब किया था उस पर
भूल हो गई थी मेरी। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। टेटू पर ये बात चल रही थी, माशाल्लाह कई सवालात आए, इसके जवाब दिए गए, आपने माशाल्लाह नसीहत फरमाई। लेकिन मैं मुफ्ती साहब से इसी दौरान अर्ज़ कर रहा था कि एक आम नौजवान है या कोई भी शख्स है जो दुनिया भर में टेटू बना रहा है और वो कहता है ठीक है मैं कोई शेर की तस्वीर या चीते की तस्वीर या सांप की तस्वीर, जानदार की तस्वीर वगैरह नहीं बनाता, मैं फूल पत्ती बनाता हूँ, मैं ऐसे ही मतलब कि एक नॉर्मल डिज़ाइन बनाता हूँ, कोई आम सा एक बनाता हूँ, तो आखिर इसमें क्या आ रहा है? जब भाई मेरा बदन है, मैं ये कर रहा हूँ, जो तकलीफ़ हो रही है मैं उठा रहा हूँ। तो मैंने मुफ्ती साहब से अर्ज़ की कि इसकी मतलब कि नाजायज़ और इस अमल के गुनाह होने की वजह अगर हम इन तक बयान कर दें तो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये तबका वो होता है कि जो बहुत ज़्यादा दीन के करीब हो, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर उन तक दीन की बात दुरुस्त अंदाज से पहुँचा दी जाए और उन्हें जायज़ नाजायज़ हराम हलाल की वजह बयान कर दी जाए तो कोई वो नहीं है, ताज्जुब नहीं है कि इनकी समझ में आ जाए कि नहीं यार हमें नहीं पता था, हम इसे तौबा करते हैं। तो मैंने कहा ये मुफ्ती साहब से सवाल किया था, क्या फरमाते हैं? क्या फरमाया मुफ्ती साहब? पहली बात तो मुसलमान के लिए तो फ़कत इतना काफ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। बाकी इसके अलावा जो इसकी हिकमतें हैं, तो जहाँ तक रहा ये कहना कि मेरा जिस्म है तो मैं उसमें तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, बुनियाद इसकी दुरुस्त नहीं है। जिस्म अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है, वो वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया है। तो हर तरह का तसर्रुफ़ यानी हर तरह का काम अपने जिस्म पर करना इसकी शरअन इजाज़त भी नहीं होती। तो एक बुनियाद कुछ वजूहात हैं इसकी, जैसे एक वजह तो यही बयान हो गई कि तकलीफ़ का सबब बनना, तो अपने आप को इस तरह की तकलीफ़ देना कि जो बिला सबब हो और इतनी सख्त अज़ियत अपने आप को देना कि जिसमें कोई बंदे की हाजत भी पूरी नहीं हो रही। एक तो ज़रूरत होती है तकलीफ़ बर्दाश्त करने की, इलाज होता है, तो वो हाजतें पूरी होती हैं, ज़रूरियात पूरी होती हैं, जिसकी वजह से बंदा जिस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा होता है। दूसरा, ये मुसले के अंदर भी आता है, यानी अपने आप को बिगाड़ देना, अपने जिस्म को, अपनी शक्ल को ये बिगाड़ देना, इससे भी हमारी शरीयत मुतहरा के अंदर मना किया गया है। और ये अक़ल में आने वाली बात भी है कि जिस्म को इस अंदाज़ में बिगाड़ देना ये गलत बात है, यानी कोई फ़ितरत के मुताबिक तरीक़ेकार नहीं है। तो ये जो टैटू बनाया जाता है, इसमें एक तो अपने जिस्म को ख़राब कर देना भी होता है, यानी कोई इसके ज़रिए से खूबसूरती हासिल नहीं होती, ये सिर्फ़ एक शौक़ होता है जिसकी बुनियाद पर ये काम किया जा रहा होता है। फिर इसके अलावा इसमें जो एक बड़ी वजह है, बुनियादी वजह जिसे उलमा ने बयान किया है, वो है तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से पैदा किया उसके अंदर तब्दीली लाना, और वो तब्दीली लाना कि जिसकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाज़त नहीं है। जैसे दाढ़ी का मूंडना, कि दाढ़ी मूंड देना, इसको तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह के अंदर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हैयत पर, जिस खिलकत पर बंदे को पैदा किया और उसको तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी, तो उस अंदाज़ में इसको तब्दील कर देना ये नाजायज़ व हराम काम होता है। तो इसी तरह ये टैटू जो बनवाए जाते हैं, इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की जो बनाई हुई तख़लीक़ है, जो बनाया हुआ जिस्म है, उसके अंदर तब्दीली लाता है बंदा, तो शरअन इसकी भी इजाज़त नहीं है। और ये अक़ल इंसानी के अंदर आने वाली फ़ितरत इंसानी और फ़ितरत सलीमा जो होगी, तबीयत जो सलीम होगी, वो इसको बख़ूबी जानती है कि ये काम कोई पसंदीदा नहीं होता। अभी पता नहीं दुनिया के अंदर वल्लाहु आलम ये कि जो इस तरह के बनाने वाले लोग होते हैं टैटू, ये जो दुनियावी एतबार से एक जिसको कहें कि एक संजीदा किस्म के लोग कहलाते हैं, जेंटलमैन कहलाते हैं, कि जिनको कहा जाए कि वाकई ये एक पर्सनैलिटी है, तो वो भी इस तरह बनवाते हों, ये मेरे इल्म के अंदर नहीं है। शायद ये जो काम हो वो उमूमी तौर पर जो लोफर किस्म के लोग या जो बाज़ शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, उनका ये काम हो, तो कोई बईद ये नहीं है। दूसरा ये कि मेरा ही बदन है, मैं तकलीफ देता हूँ तो मैं तकलीफ उठाता हूँ, इसमें क्या है? तो फिर खुदकुशी भी जायज़ हो जानी चाहिए ऐसों के नज़दीक। तो खुदकुशी में अपने आप को ही तकलीफ होती है ना, तो ज़ाहिर खुदकुशी हराम है, ये तो बच्चा बच्चा समझता है। इसने अपनी ज़ात को बेला वजह
खुद से तकलीफ देना या तकलीफ पर पेश करना ये दुरुस्त नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महशर में करीब कैसे हुआ जाए, इसके लिए आप कोई तरीका इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। कसरत से दुरूद व सलाम करे, सुन्नतों पर अमल करे, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करे, नेकियां करता रहे, दुआएं मांगता रहे, तो इंशाअल्लाह कुर्ब मुस्तफ़ा भी नसीब हो जाएगा। खूब दुरूद पाक की कसरत जो है ये भी कुर्ब मुस्तफ़ा का एक जरिया है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि मुनकर नकीर का क्या मतलब है? जज़ाकल्लाहु खैरा। मुनकर नकीर, मुनकर वो जिसका इनकार किया गया, और नकीर के माना भी तकरीबन इसी तरह के, इनकार किया गया। मुफ्ती साहब मजीद। जी, मुनकर नकीर यानी इसका मतलब ये होता है कि ऐसी हैयत पर, ऐसी हालत पर होना कि जो आम तौर पे मारूफ ना हो। मुनकर ये मारूफ के मुकाबले में है। मतलब एक चीज़ हमें मालूम होती है कि हमारी जो सूरत है वो हम देख रहे हैं, तो मुनकर नकीर एक ऐसी सूरत पर हमारे सामने आएंगे, ऐसी शक्ल के अंदर हमारे सामने आएंगे कि जो हमें मालूम नहीं है। तो ऐसी शक्ल के जो मारूफ नहीं है, मालूम नहीं है, इस बुनियाद पर उनको मुनकर नकीर ये कहा जाता है। मुनकर नकीर के ताल्लुक से अल मुअतक़द मअल मुअतमद सफ़ा 182 के हवाले से कि हज़रत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्हें मुनकर नकीर इसलिए कहते हैं कि इनकी शक्लें इंसानों, दीगर फरिश्तों, चौपाइयों और कीड़े मकोड़ों से बिल्कुल जुदा हैं। मोमिनीन के लिए बतौर इज्जत अल्लाह पाक इनकी सूरत को देखने और साबित कदम रहने के लायक बना देता है। और क़यामत से कब्ल बरज़ख ही में मुनाफिक की जिल्लत और उसका पर्दा चाक करने के लिए वो पहली सूरत होती है, ताकि मुनाफिक के लिए यहाँ भी अजाब हो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन दोनों यानी मुनकर नकीर फरिश्तों का ये नाम इसलिए हुआ कि इनकी ऐसी सूरत है जिसे इंसान ने जीते जी कभी नहीं देखा। हवाला अल मुअतक़द मल मुअतमद सफ़ा 182। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता होता है? जी हाँ, इस तरह की रिवायतें हैं। इमाम हसन बिन अली बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शरह सुन्ना में फरमाते हैं, इस बात पर हमारा पक्का यकीन है कि बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है जो उसे अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक गिराता है। तबक़ात हनाबिला में भी इसी तरह रूहुल बयान में रिवायत में आया है कि बारिश के हर कतरे पर एक फरिश्ता मुकर्रर होता है ताकि वो उसे अल्लाह करीम के हुक्म के मुताबिक दरिया, मैदान या हवा पर गिराए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ाकत ख़ान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। पिछले रमज़ानुल मुबारक को अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ा एतकाफ़ की सआदत हासिल हुई फ़ैज़ान मदीना कराची में अमीर अहले सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ एक सवाल पूछा गया कि यौमुन नहर किस दिन को कहते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया। तो अमीर अहले सुन्नत ने मदनी फ़ीस का इरशाद फरमाया, तो मैंने नीयत की थी कि इंशाअल्लाह सिरातुल जिनान मुकम्मल पढ़ने की नीयत करूँगा 7 महीने में। तो अल्लाह पाक के फजल करम से कल रात 12:45 पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुकम्मल सिरातुल जिनान ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे घर वालों के लिए बख्शिश की दुआ फरमा दें। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक आपकी, आपके माँ बाप की, बाल बच्चों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमारे हक़ में भी ये दुआ मुस्तजाब हो। बांग्लादेश के शहर ढाका से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत के बारगाह में मेरा ये सवाल है, अगर मुजाहिदा नफ्स करना चाहे तो कैसे करे? इसका आसान तरीका इरशाद फरमाए। मुजाहिदे के लिए तो गालिबन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 80 बरस चाहिए। तो याद पड़ता है मुझे कि ऐसा थोड़ी आसान है कि वो झटका मारा और मुजाहिदा कर लिया।
न सिद्क़े मकाल है, न रिज़्क़ हलाल मुयस्सर, न सच बोलते हैं, न हलाल रोज़ी खाते हैं, ना मतलब ये है कि उसने अखलाक हैं और सच्ची बात है कि इल्म भी नहीं है कि इन गुनाहों से बंदा बच्चे, ना सोबतें हैं, तब ये मुजाहिदा नफ्स ज़ाहिर इतना आसान तो नहीं है। ये तो बात की मंजिल है, पहले जो मतलब शुरू की मंजिल है वो तो मतलब आदमी उस पर तो चले, उस एक स्टेप बाय स्टेप ही तो चलता ना, फिर जाकर तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल पर फ्लोर बिल्डिंग के पहुंचता है ना। एकदम से उछल कर तो बिल्डिंग की छत पर ना नहीं जा पड़ता। विलायत के हवाले से जब गुफ्तगू की ना अल्लाह ताला ने, तो उस मकाम पे गुफ्तगू की है। और मुजाहदा और आसानी ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं आपस में बिल्कुल ही नहीं। मुजाहदे का मतलब ही सख्त जानी होती है, सख्ती के साथ किसी चीज़ का करना होता है, तो वो कैसे आसानी के साथ होगा। हुजूर आप क्या फरमाते हैं कि इस पुरफितन दौर में अगर कोई शख्स सीख कर सही नमाज पढ़ना सीख ले और सही नमाज पढ़े, पांचों नमाजें जमाअत के साथ जाकर, और इसके जो सुन्नतें, नवाफिल और दीगर जो आदाब है वो बजा लाए, दीगर जो उसके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ उलूम है वो सीख ले, रिज़्क़ हलाल कमाए और जुमला जो उसके हुकूक वाजिबा हैं वो सही तौर पर अदा करे, और इसके अंदर ये अपनी कोशिशें करता रहे, तो आपको लगता है कि खुद ये अपनी ज़ात को बहुत ज़बरदस्त मुजाहिदा है। बहुत बड़ी बात है अगर कोई इस दौर में कर जाए ना। बाकी हमको तो आती है बातें करना, अमल करना नहीं आता। तो अगर ये जो करने का काम है ना बंदा वो करे ना, तो इंशाअल्लाह रब की रिजा जरूर हासिल होगी, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। और बड़े बड़े मुजाहदे और रियाजतें और इस तरह के मामलात हर एक का काम भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है, ये सवाल कर रहे हैं क्या शोहर के होते हुए बीवी की इजाज़त के साथ नाबालिग बच्चे को मुरीद करवा सकते हैं। इसमें यह कि बाज़ औक़ात बाप जो है वो उसका ज़हन नहीं होता इस तरफ, या वो मतलब मना करता है बिला वजह। तो अब बालिग नहीं है अभी बच्चा, लेकिन समझदार है, तो उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस तरह फरमाया कि उसमें अगर ये है कि पीर ये देखता है तो इसको मतलब बैअत में ले ले, मुरीद कर ले अपना। जैसे अगर छोटे बच्चे को यूं भी अगर बैअत कर ली किसी ने, पीर की वो बैत हो गया तो वो एक तरफा हुई। जब ये बड़ा होकर इसको बाकी रखेगा ना, या उसका वालिद इजाजत दे दे, वालिद सरपरस्त जो भी है सरपरस्त वो इजाजत दे तो भी बैत नाफिज हो जाएगी, मुनअक्किद हो जाएगी। और या ये बालिग होकर इसको बाकी रखेगा तो एक तरफ से तो ईजाब हो गया था, अब वो बाकी रखेगा तो वो कबूल हो गया, तो यूं भी मतलब बैत दुरुस्त हो जाएगी। एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा रखना मुनासिब नहीं है, बैत करवा देनी चाहिए। तो वही उसूल के सरपरस्त बैत करवाए, लेकिन वो गुंजाइश है मैंने आपको जो है वो भी बताई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। عندما نأكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما نأكل نقول بسم الله محمد رسول الله. عندنا الطعام ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأوانا وجعلنا من المسلمين من غير حول منا ولا قوة. چمکا ماہ نور کا ہلال، چمکا ماہ نور کا ہلال، آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، آیا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند۔
जहाँ को दीन मिला, मैं दीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आँखों का तारा नाम मुहम्मद का उजाला, नाम मुहम्मद सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। बच्चे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी जिंदाबाद। हाजिर है दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं हैं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। बार बार माँ बाप और घर के तमाम अफराद के साथ हज नसीब करे, मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। माशाअल्लाह आखिरी में जो बच्ची दिखाई कमाल की बच्ची है। बोले थे आका नहीं जाना है, ये ग़ालिबन उम्रे पर गए होंगे तो यानी कि बस अब नहीं जाना है, घर नहीं जाना है, मदीने में रहना है। तुम घर को न खींचो, नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ कर आका का मदीना नहीं जाता। सुभान अल्लाह। अभी मदनी मुज़ाकरे में यमुन नहर के हवाले से बात हुई थी। यमुन नहर क्या है? कुर्बानी का दिन जो होता ना वो यमुन नहर कहलाते हैं। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है। एक शेर इन्होंने लिखा है, इसकी शरई रहनुमाई मालूम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वास्ते जाँ भी दूँ मैं गवाह ईमान भी दूँ, किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ बदले में मैं तेरे। अमीर अहले सुन्नत इन अशआर के बारे में शरई रहनुमाई अता फरमा दें कि ये बोलना कैसा है। ईमान की इसके पास वैल्यू नहीं है। अपने किसी माशूक के ताल्लुक से ये कह रहा ग़ालिबन कि मैं तेरी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ, अपना ईमान भी गंवा सकता हूँ, ज़ाया कर सकता हूँ। तो ज़ाहिर है तो ये ईमान तो गंवा चुका, ईमान की वैल्यू नहीं इसके पास। ये तो कुफ्र या शेर है। तौबा भी करनी होगी, नए सिरे से निकाह था तो नए सिरे से निकाह भी करना होगा। निकाह भी टूट गया इसका, ईमान भी चला गया। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। फिल्मी गाने जो है ना इन्होंने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ये होगा फिल्मी गाने का शेर। इस तरह के बहुत गाने के अशार होते हैं। मकतबतुल मदीना के रिसाला है ना, गानों के 35 कुफ्री अशार, इसको जरूर पढ़िए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमान अगर मआज़ अल्लाह इरादा कुफ्र करेगा काफिर हो जाएगा। इसमें इरादा किया ना इसने कि ईमान गंवा दूं, तो ये इरादा कर लिया तो कुफ्र का, तो इरादा कर कर वो खुद काफिर हो गया। यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई कहे मैं 100 साल के बाद काफिर हो जाऊंगा तो अभी काफिर हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल SMS के ज़रिए मौसूल हुआ है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु के अलावा और कितने मुअज्जिन थे, और क्या कोई और सहाबी भी इस ज़माने में अजान देते थे? जी हाँ, दीगर सहाबा भी अजान देते थे।
उनका भी साबित अजान देना। चुनाचे मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़िन 4 थे। नंबर 1 हज़रत सैयदना बिलाल हबशी बिन रबाह, नंबर 2 हज़रत सैयदना अम्र बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये दोनों मदीना मुनव्वरा में थे। और नंबर 3 हज़रत सैयदना साद बिन आइज़ रज़ी अल्लाह अन्हु कुबा शरीफ में, और नंबर 4 हज़रत सैयदना अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा में अजान देते थे। हवाला अल मुवाहिब लिल कस्तलानी, जिल्द पहली, सफ़ा नंबर 455। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा भी तकरीबन 5 मज़ीद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का तज़किरा खलीफा आला हज़रत अल्लामा अब्दुल हई अल-कत्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अत-तरातिबुल इदारिया के अंदर बयान फरमाए हैं। 5 मज़ीद हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजान दिया करते थे। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि जैसे हम अशआर पढ़ते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, जैसे कि आला हज़रत के भी कई अशार हैं, जैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो इसमें पढ़ने वाला या फिर कहने वाला सिर्फ एक मरतबा कह रहा होता है। तो सवाल ये था कि लाखों सलाम ये किस तरह मुमकिन है, क्या ये कहना दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है, और सवाब भी मिलेगा लाखों सलाम अर्ज करने का। आला हज़रत का एक है ना शेर, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुल दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। इनमें 2 बार करोड़ों दुरूद कहा गया, तो ये 2 बार करोड़ों दुरूद भेजने का सवाब मिलेगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि अल्लाह पाक की हदों से क्या मुराद है? जहाँ अल्लाह पाक ने जिन जिन कामों से मना किया वो उनसे रुकना है। कि अगर इनसे बाहर निकला तो उसने हद तोड़ी, अल्लाह पाक की शरीयत की खिलाफ वर्जी की तो इसने हद तोड़ी। हुदूदुल्लाह वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अली रज़ा लियाकतपुर से सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दोस्तों को बुरी सोहबत से कैसे बचाएं, ये इरशाद फरमा दें। बुरी सोहबत के नुकसानात उनके सामने रखें, तो इतनी मालूमात होनी चाहिए, वरना ये कि मुख्तलिफ मौके पर इसके बयानात होते हैं और क्लिप भी हासिल किए जा सकते हैं दावत इस्लामी की वेबसाइट से। तो वो अगर दोस्तों को सुनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। कि बुरी सोबत तो होती बुरी है, अच्छी सोबत अच्छी होती है। और बुरी सोबत का नुकसान तो अक्ली तौर पर भी मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हो और कोई एक इनके साथ बैठा हो और जुआ ना खेल रहा हो, खाली बैठा हो और पुलिस छापा मारे, तो ये अगर कहे कि मैं तो खेलता नहीं था, मैं खाली बैठा था, क्या पुलिस उसको छोड़ेगी? तो उसको ले ही जाएगी। तो यूं मतलब है कि बुरी सोहबत वाला तो बच सकता ही नहीं है। सोहबत मुअस्सिरा, सोहबत असर रखती है। तो सोहबत जो बुरी होगी तो उसके जो अंदाज जो है ना ये तब्दील होंगे, इसके अफ़आल तब्दील होंगे, काम, और ये इसके अंदर बुराइयां सरायत करती चली जाएंगी। कुरान करीम में तो यहाँ तक फरमाया, शैतान अगर तुझे भुला दे तो याद आने पर जालिमों में मत बैठ। तो कुरान ने हमें बुरी सोबत से रुकने का इरशाद फरमाया।
غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر بھی بڑا پیارا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو یوں بری صحبت سے تو بچنا ہی چاہیے کہ یار بد بدتر از مارے بد، یعنی کہ برا دوست جو ہے نا یہ برے سانپ سے بھی بڑھ کر برا ہے، کیونکہ برا سانپ جو ہے وہ زیادہ زیادہ جان لے لے گا، لیکن برا دوست جو ہے وہ ایمان لے لے گا. اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ اس میں رہنمائی فرمائے، ایک تو صحبت برا بناتی ہے، لیکن بری صحبت کیا چیز کی طرف، کون سی چیز تو بری صحبت کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی کہ اس پر بھی کچھ کلام ہوتا ہے کہ آدمی جیسا ہوتا ہے نا ویسی صحبت تلاش کر رہا ہوتا ہے. ایک محلے میں جب بندہ رہنے جاتا ہے نیا نیا تو وہاں پر اچھے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، برے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں. گلی کوچے میں محلے میں نوجوان ہوتے ہیں، اسی محلے کے اندر ایک بھائی ہوتا ہے، اس کی کسی دوستی نہیں ہوتی، وہ گھر آتا ہے جاتا ہے کام کاج کر رہا ہوتا ہے، ایک اچھی ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے. دوسرا بھائی وہ اسی گلی کے لوفر اور موالی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتا ہے اور وہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. تو اصل میں ہم کیا اس پہ غور کریں؟ جیسے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے پرندوں کی جہاں مثال دی ہے کہ پرندہ اپنے ہی پرندے کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ ملے گا، کوہ کوے کے ساتھ ملے گا، چڑیا چڑیا کے ساتھ ملے گی. حالانکہ ہیں سب پرندے، لیکن تم کوے اور کبوتر کو ایک ساتھ نہیں دیکھتے، چڑیا اور کوئل کو تم ایک ساتھ نہیں دیکھتے، تو سارے الگ الگ رہتے ہیں. تو آدمی کے اندر جو وصف، جو عادت اور جو اس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو اتنے سارے کلاس پہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو کوئی نیا لڑکا جب ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اپنی طرح کے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ کہ صحبت برا بناتی ہے، دوسرا کہ اپنی خود طبیعت میں ہی کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جو اس بری صحبت کی طرف اس کو کشش کرواتی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ واقعی بعضوں میں تو ایسی فطرتیں ہوتی ہیں کہ وہ نکلتا ہی ایسا ہے اس کے، جیسے کہ بعض علم دین حاصل کرتے ہیں لیکن وہ تکبر بھی کریں گے، بد اخلاقی بھی کریں گے اور دین فروشی بھی کریں گے، دین کو بالکل یعنی کہ دنیا جمع کرنے کا ذریعہ بنائیں گے اور اس میں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کریں گے اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب کہ ان کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ بیج جو ہے نا، وہ جیسا بیج بوئیں گے ویسا پھل نکلے گا. تو بعضوں کا تخم جو ہے نا وہی خراب ہوتا ہے کہ وہ بھلے وہ کچھ بھی کرے، بظاہر یعنی کہ علم دین حاصل کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آخر وہ اس کا برا تخم جو ہے نا وہ برا پھل لاتا ہے. تو اللہ پاک سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ مطلب ہمیں بس برائی سے بچائے. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نا یار یہ تو فلاں ایسا کرتا ہے، یار یہ تو فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، پیر صاحب کا بیٹا ہے یا عالم کا بیٹا ہے، یہ تو مسجد کے امام خطیب صاحب کی بیٹی ہے اور بے پردہ گھومتی ہے، امام صاحب اس کو روکتے نہیں ہیں، خطیب صاحب منع نہیں کرتے. یہ لوگ پھر اپنی طرف سے وہاں کرے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. خطیب صاحب کا کتنا خون جل چکا ہے آپ کو کیا پتا چلے، امام صاحب کتنے پریشان ہیں اپنی اس نالائق اولاد کی وجہ سے جو بے پردہ یا مطلب اور گناہوں میں پڑی ہوئی ہے. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں کسی پر بدگمانی کرنی نہیں چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، دنیا کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور اس کا بھائی تو یوں کر رہا ہے، اس کا بیٹا تو یوں کر رہا ہے، اس کی بہن تو مطلب بے پردہ کر رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کام کی بات لے لینی چاہیے. خذ ما صفا دع ما قدر، اچھی چیز لے لو، بری چیز
तर्क कर दो। तो अब उसके घर में जो बुराई है, बाजों के घरों में बेचारों की बुराइयां होती हैं, वो मुकाबला कर नहीं पाते। कई दावत इस्लामी के मुबल्लिग मिलेंगे, बड़े मसलूम होते हैं घर के हवाले से, घर में वो एक चलती नहीं, इनके घर में इतने मसाइल होते हैं, वही गुनाह भरे मसाइल, बेचारे क्या करें। अब आप इनको तंज करेंगे कि मौलाना बना है, तेरी इसको तो देख, तेरी बहन को तो देख, अपने बच्चे को तो देख, तो ये फिर क्या दिल बर्दाश्त होकर हो सकता है खुद भी वहीं झुक जाए, चलो मैं भी अब ऐसा बन जाता हूँ, ये लोग जीने नहीं देते मेरे को। तो ये नहीं करना चाहिए, बदगुमानी भी नहीं करना चाहिए। तो मतलब क्या ये कोई उसूल है हुजूर के वालिद साहब अगर नेक हैं तो औलाद भी नेक होगी, अगर औलाद बेटा नेक है तो बाप भी नेक होगा, या शोहर नेक है तो बीवी भी नेक होगी, या बीवी नेक है तो ज़रूर इसका शोहर भी नेक होगा? ये कोई उसूल बना हुआ है या ये हमारे बनाए हुए कुछ तसव्वुरात हैं क्या इसमें? क्योंकि ये बहुत अहम, क्योंकि ये किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए, तनकीद का निशाना बनाने के लिए या उसको रिग्रेट करने के लिए ये मौजू एक किसी के लिए भी काफ़ी होता है। माशाल्लाह अपने इमाम साहब को बड़े प्यारे अंदाज से आपने इनकी वो तरफ से बात की है, क्या फरमाते हैं? ज़रा मजहबी आदमी दिल नहीं जलाएगा यार कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी यूं करती है। दुनियावी तौर पे भी वो करेगा कि यार लोग क्या बोलेंगे, यूं भी वो तो, लेकिन लोग बस बोला बोली कर ही रहे होते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा जो था वो काफिरों के साथ था, और जब तूफान नूह आया तो वो उसने बोला मैं तो पहाड़ पे चढ़ गया, अपनी जान बचा लूंगा। तो पहाड़ पे चढ़ गया, तूफान आया तो गार में घुस गया, वही मतलब ये कि वो पानी तो पहुंचा, उसको डबो दिया, पानी ने डूब गया। तो इस तरह तो बहुत सारे गौर करने जाए तो वाकयात सामने आ सकते। तो बाप बेटा, माँ बेटी, मियाँ बीवी, ये कुछ भी इस तरह के मसले कि ये डालना नहीं चाहिए किसी पर। वो तो कुरान करीम की आयत भी है ना बाप बेटों के ताल्लुक से। जी, इस तरह की आयतें तो क़यामत में जी, लेकिन वो काफिरों के लिए आई हैं। वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा, और इसी तरह सूरह लुक़मान के आखिर के अंदर भी ये मौजूद है कि जो औलाद है वो बाप की तरफ से और बाप औलाद की तरफ से उसे कोई किफ़ायत नहीं करेगा। लेकिन मुफस्सिरीन ने इसको काफिरों के लिए लिखा है कि काफिर के एतबार से ये होगा। तो शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए को बहुत दूर से सफर करके इनके इलाके में पहुंचा, तो घर मालूम किया, मालूम करके घर पे दस्तक दी। मैं कि ज़ौजा ने मतलब जवाब दिया क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी दूर से सफर करके हजरत से मिलने आया हूँ, ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह से। तो वो औरत जो थी वो बुरा भला बोलने लगी हजरत को। ये तो सटपटा गया, इनकी विलायत के डंके बज रहे हैं, घर की औरत इनको बुरा भला कह रही है, चक्कर क्या है। तो ये बड़े मायूस हुए। फिर वो दिल पकड़ा कि नहीं यार इतनी दूर से आया हूँ तो कोशिश करनी चाहिए, ज़ियारत कर लेनी चाहिए। फिर लोगों से पूछा कि ये कहाँ मिलेंगे, तो किसी ने कहा कि इस तरफ जंगल की तरफ गए थे। तो वो साहब जो थे वो जंगल की तरफ निकले, शायद मुलाकात हो जाए। दूर से वैसा महसूस हुआ कि कोई शख्स आ रहा है और पीछे कोई उसके जानवर है, उस पर लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है। वो जब ये नुमाया हुए ना तो ताज्जुब में पड़ गए कि जो पीछे जानवर था वो शेर था, और शेर पर लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ था। और साथ में हज़रत शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे भी वो चला आ रहा था। ये तो हैरान परेशान खड़ा हो गया। तो हजरत ने आवाज देकर फरमाया कि भाई अगर मैं अपनी बदमिजाज औरत का बोझ ना उठाता तो क्या ये शेर मेरा बोझ उठाता?
कितना जबरदस्त ने समझाया। तो यूं मियाँ दुरुस्त हो तो बीवी दुरुस्त ही हो ये जरूरी नहीं है, और बीवी अच्छी हो तो मियाँ शोहर अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं है। वैसे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया। आसिया का, हजरत बीबी आसिया का तो कुरान में बयान है ना, फिरौन के घर में थी ना, और फिरौन तो खुदाई का दावा करता था, और आसिया वलिया थी रहमतुल्लाह अलैहा। कितनी इनके बारे में तो आयतें हैं कुरानी। बाद में उस जालिम ने इनको शहीद कर दिया बीबी आसिया को, इसी वजह से कि वो इस पर ईमान नहीं लाती थी, इसका इनकार करती थी, वो मोमिना थी। साथ साथ आपने शोहरों को भी काफ़ी तसल्ली दी है कि अगर घर ना तोड़ो, बीवी की अगर बदतमीजी पर सब्र करोगे तो हो सकता है शेर भी काबू आ जावे। अच्छी तसल्ली दी आपने। और हो सकता है कि अगर बीवी, हकीकत भी है, हो सकता है बीवी अगर शोहर की बदतमीजी पर सब्र करे तो उससे भी कोई अल्लाह पाक मकाम मर्तबा अता फरमा दे। बेशक बेशक, यानी घर तोड़ने के बजाय सब्र करने की तरफ जाना चाहिए। घर टूट जाते हैं, घर ना तोड़े, सब्र करें, हरावड़ी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये होता है। बहुत सारे, अक्सर ना कहूं तो बहुत सारे साहबा किराम के वालिदैन का ईमान साबित नहीं है, वो गैर मुस्लिम थे, ये गैर मुस्लिम और ये बेटे सहाबी, और ऐसे मुसलमान के इन जैसा कोई मुसलमान इनके बाद हो नहीं सकता। यूं बाप बेटा, माँ बेटी, मियाँ बीवी, इनके अलग 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 हो सकता है। एक SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। अमीर अहले सुन्नत अमूमन ख़वातीन में, रिश्तेदारों में और आपस में पड़ोस में ये लेन देन का मामला चल रहा होता है। कभी नमक दे दिया जाता है तो कभी चीनी ले ली जाती है, कभी ऑयल ख़त्म हो जाता है, माचिस की तीली, माचिस वगैरह, ये आपस में लेन देन चल रहा होता है। तो क्या इन छोटी छोटी चीज़ों पर पड़ोसियों का एक दूसरों की मदद करने पर क्या सवाब भी मिलता है? बिल्कुल मिलेगा सवाब, मदद करनी चाहिए छोटी छोटी चीजों। बल्कि नमक और आग का तस्करा तो हदीस में है, और ये हदीस में फजीलत भी है इसकी कि इतना खाना सदका दी ये कि बिल्कुल यानी कि देना चाहिए। बात सूरतों में तो बात चीजों का मना करने की मुमानत है, मना ही ना किया जाए। अब आग, पहले वो उस दौर की बात है, गालिबन के पत्थरों से और आग लगाई जाती हो तो एक दूसरे से आग लेते होंगे। अब माचिस वल्लाहु आलम, लेकिन अब माचिस भी अब पुराना हो गया, अब तो वो लाइटर। इब्ने माजा ने हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत की, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज का मना कर रहा, हलाल नहीं। फरमाया पानी और नमक और आग। कहती है मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को तो हमने समझ लिया, मगर नमक और आग का मना करना क्यों हलाल नहीं? फरमाया ये मेरा, जिसने आग दे दी गोया उसने उस पूरे को सदका किया जो आग से पकाया गया, और जिसने नमक दे दिया गोया उसने तमाम उस खाने को सदका किया जो उस नमक से दुरुस्त किया गया, और जिसने मुसलमान को उस जगह पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी मिलता है तो गोया गर्दन को आजाद किया, यानी गुलाम आजाद किया, और जिसने मुस्लिम को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी नहीं मिलता है तो गोया उसे जिंदा कर दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे
سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پنا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پرنا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم پتے پہ لکھا ہمارا نبی پتے پہ لکھا ہمارا نبی جن کے تلوار کا دھوَر آب حیات جن کے تلووں کا دھوَر ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ غیب غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ غیب بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سوال ہے کہ
کہ بچپن اکثر لوگ بچے ایک دوسرے نوں دے دیندے نے بھن بھراواں نوں اودے تھیما دی بچی دتی سی میں خود تے ہن میں بچی دا نکاح دا وقت آ گیا وے تے والدین بھی اودے ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال زندہ نے سلم سوال ہے وے کہ جنہاں نے پرورش کیتی اودی 6 ماہ دے بعد نکاح دے وقت نام انہاں دا آوے گا یا اصل والدین جڑے زندہ نے اس وقت انہاں دا نام آئے گا؟ باپ تو اصل تو ہے ہی وہ باپ جو باپ ہے اس کا، تو اس اصل باپ ہی کا نام لکھنا ہوگا اگر لکھنا ہے تو، اور لینا ہے کہ تو بھی اس کو یہی نام لینا ہوگا کہ یہ اس کا باپ وہ ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔ ولادت کے وقت اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا دعا تھی؟ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بوقت ولادت کیا دعا تھی؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی یعنی پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے۔ جواب درست ہے۔ شعر پورا کیجئے گا، میں ایک مصرع پڑھوں گا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جواب درست ہے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ جواب درست ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کس رخ بیٹھتے تھے؟ قبلہ رخ بیٹھتے۔ جواب درست ہے۔ اکثر قبلے کی طرف رخ کرتے، تو ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ جہاں تک ہو سکے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا کریں۔ صحابہ کرام میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے کتنے گناہ افضل ہے؟ 70 گنا افضل ہے۔ جواب درست ہے۔ 70 گنا مانی 70 ٹائمز۔ کون سی آیت ہے طیبہ؟ تمام آیتوں کی سردار ہے۔ آیت الکرسی۔ جواب درست ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام بتائیے۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ کثیر تعداد میں مدرسۃ المدینہ کے بچے جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ آج ہیں، اور مختلف مدرسۃ المدینہ کے بچے ہیں، اور مرکزی جامعۃ المدینہ کے ساتھ جو ملک مدرسۃ المدینہ ہے وہاں سے کچھ بھی ہیں، گلشن غازی، احمد رضا مسجد 8C، نورانی مسجد 9E، اور فیضان امیم بابا آئی لینڈ، خدا کی بستی سجانی ٹاؤن 7D اور سجانی ٹاؤن 4D، فیضان رضا اتاریہ مسجد کے طلبہ کرام جو ہے وہ بچے یہاں مدرسۃ المدینہ کے ہیں، اور ایک کثیر تعداد ہے پیچھے تک الحمدللہ۔ ان کے اساتذہ کرام بھی ہیں اور کچھ کے سرپرست بھی یہاں آئے ہیں، تو انہی کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بورڈ بھی لے کر آئے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب لے لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام؟ ہاشم۔
जवाब दुरुस्त है। कुछ बोर्ड भी लेकर आए हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, कुछ नारे भी हैं। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा और भी दुआओं से भी नवाज दें। इसके साथ साथ माशाअल्लाह कुछ नारे भी लिखे हुए इन्होंने, और एक मदी मुन्ना है, इंशाल्लाह कुछ नारे मदी मुन्ना भी लगाएगा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, पुरनूर की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, आका अत्तार की आमद। मरहबा। जवाब दीजिए, हमारे प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। जवाब दुरुस्त है। यार गार किस साहबी का लक़ब है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज हम मौजूद हैं सिंध के शहर खैरपुर मेरठ में, जिसको खजूरों का शहर भी कहा जाता है। आप देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द खजूरों के दरख्त ही दरख्त हैं। तो टॉपिक तो आप शायद समझ भी गए होंगे। आज टॉपिक जो है वो है खजूर, और खजूर के बारे में मुख्तलिफ मालूमात भी देंगे आपको, कुछ सवालात भी करेंगे शेख से। खज्जी से खजूर का सफ़र कैसे होता है, आइए आपको ले चलते हैं। आप मेरे सामने खज्जी का ढेर देख रहे हैं। इस बारे में एक हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, उनसे पूछते हैं। अब्दुल सत्तार साहब, ये बताएं, ये इतनी सारी ये खज्जी कहेंगे इसको? ये खजूर भी कहते हैं, खजी भी कहते हैं इसको। अच्छा, सिंधी में क्या कहते हैं? सिंधी में खजी बोलते हैं, उर्दू में खजूर बोलते हैं। अच्छा, आप बैठिएगा। अब मुझे ये बताएं कि ये यहाँ पर क्यों रखी गई है ये खज्जी, और ये पीली क्यों है, फिर ये ब्राउन कैसे होगी? ये पीली इसलिए अभी ये काट के आए हैं, काट के खजूर उधर लेके दरख्त से लेके आए, फिर ये सूख जाएगी 3 दिन। दरख्त से उतारने के बाद सबसे पहले आप इस तरह सुखा देते हैं? सबसे पहले पहला स्टेप ये है? पहला स्टेप ये है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद ये सुखा के फिर इसको भराई करते हैं पेटियों में या किसी टूटे बर्तन में भराई करते हैं, फिर इसको तेल लगाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये सूख गई है ना, ये तैयार हो गई है। अभी एक दिन लगेगा, फिर भी तैयार होने में 1 दिन लगेगा। अच्छा, तैयार होने से क्या मुराद है ये बता? तैयार होने से यही मुराद है, जाके रखो कहीं भी रखो, 6 महीना रखो, 12 महीना रखो, ये खराब नहीं होगी। ये करने के बाद आप इसको क्या करेंगे? दो दिन बाद इसके बाद क्या करेंगे? धोएंगे, धो के तेल वेल लगा के भराई करेंगे, भराई करके फिर फरोख्त करेंगे। ये आपका बिजनेस है ना? ये हमारा भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं? बिजनेस भी है, डील भी है। खाते भी हैं? खाते भी हैं। ज्यादा खाते हैं, कम खाते हैं? ज्यादा, कभी कम खा जाते हैं, कभी ज्यादा खा जाते हैं। छुआरा कैसे बनता है ये खजूर? छुआरा काट के आते हैं, फिर हम उसको लकड़ी होती है उस जला के फिर कढ़ाई में डालते हैं। इसको आप कढ़ाई में डालते हैं? कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई में क्या घी डालते हैं? तेल डालते हैं? नहीं, रंगकाट डालते हैं। रंगकाट, हाँ, रंगकाट जो है ना, अच्छा, वो है पाउडर होता है, वो पाउडर डालते हैं। पाउडर डाल के पानी, फिर पानी भी डालते हैं। अच्छा, फिर इसको फिर उबालते हैं, उबाल के फिर निकालते हैं, निकाल के फिर ऐसे ही सुखाते हैं उसको भी। अच्छा, वो भी ऐसे ही सूखता है। मतलब ये सूखने के बाद वो कितने दिन के बाद छुआरा बन जाएगी? वो 3 दिन के बाद छुआरा बन जाएगा। 3 दिन 4 दिन, 3 दिन 4 दिन ऐसे होता है मौसम के हिसाब से। और एक और चीज मशहूर है माशरे में, हाँ, कि ना ये नर छुआरा है। हाँ, नर छुआरा है। तो नर छुआरा होता है तो मादा छुआरा भी होगी? हाँ, तो नर भी वैसे जो बड़ी खजी होती है, अच्छी वाली क्वालिटी वाली, जिसको नर बोला जाता है। जो बड़ा होता है, जो छोटा होता है, उसको मादा कहते हैं। खजूर तो खजूर है ना, एक ही है। ये नाम रखे हुए हैं। ये नर छुआरा है, नर है तो बड़ा है, काफी क्वालिटी वाला है। अभी जैसे ये जिनसे है ना, इसमें असील है, करबलाई है, काचू वाली है, जितनी जिनसे होती है वो खजूर एक ही होती है। उसमें नर होता है, मादा होता है, ऐसे ही होता है। तो आप ये कब से ये काम करते हैं? कितना? हमारा तकरीबन 25-30 साल हो गए यही काम करते हैं। 25-30 साल। हाँ। आपने खज्जी से खजूर का सफर
हमारे दोस्त अब्दुल सत्तार भाई की ज़बानी सुना और अब कुछ क्वेश्चन रेज करने हैं, शेख से पूछना है क्या खजूर खाना सुन्नत है, ये एक सवाल है। साथ साथ एक और सवाल बन रहा है यहाँ पर कि हम रोज़े के लिए खजूर इस्तेमाल करते हैं, खजूर से सिर्फ रोज़ा खोल सकते हैं या खज्जी से भी रोज़ा खोल सकते हैं और छुआरे से भी रोज़ा खोल सकते हैं, मतलब है तो खजूर ही, लेकिन क्या खज्जी से रोज़ा खोलना सुन्नत कहलाएगा? प्लीज़ शेख, कुछ मालूमात डिस्कस हुई, कुछ क्वेश्चंस मैंने रेस किए, बताइए कि आखिर दुरुस्त क्या है। बेशक खजूर खाना भी सुन्नत है और खजूर से इफ्तार करना ये भी सुन्नत। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई रोजा इफ्तार करे तो खजूर या छुआरे से इफ्तार करे कि वो बरकत है, और अगर ना भी ले तो पानी से कि वो पाक करने वाला है। हवाला तिरमिजी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 162 हदीस नंबर 695। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामरान अत्तारी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं बाज़ लोग कहते हैं कि असर की नमाज देर से पढ़ना अफजल है, क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, असर की नमाज ताखीर से पढ़नी मुस्तहब है, और ताखीर के यहाँ माना ये होते हैं कि जैसे कि जितना वक्त होता है ना उसका आधा कर लिया जाए, तो पहले आधे में पढ़ना ये ताजील कहलाता है, जल्दी, और दूसरे आधे में ताखीर। अलबत्ता बादल जब छाए हों उस वक्त मुस्तहब ये कि ताजील यानी जल्दी पढ़ ले असर। मुफ्ती साहब ऐसे ही है? जी ऐसे ही है, नहीं ये उस दौर के हिसाब से तो यही है, क्योंकि उस वक्त मालूम नहीं होता था कि सूरज कहीं गुरूब ना हो जाए और या गुरूब होने के करीब ना हो जाए, तो चूँकि आखिरी 20 मिनट के अंदर पढ़ना ये मकरूह है, जानबूझ के इतनी ताख़िर करना मकरूह है। तो लेकिन हमारे दौर के अंदर चूँकि ऐसा हिसाब है नहीं कि इस बात का अंदेशा हो कि सूरज डूब जाएगा या सूरज डूबेगा तो पता नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो टाइम फ़िक्स होता है, मालूम होता है सबको, जो कैलेंडर है उसके ज़रिए पता चल जाता है, तो यहाँ पर वो इल्लत पाई नहीं जाएगी, वो वजह सबब पाया नहीं जाएगा इस मकाम पर। 31 अगस्त 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने कितने साल की उम्र में नाज़रा कुरान करीम ख़त्म फरमाया? जवाब 4.5 साल की उम्र में। सवाल नंबर 2, आसमानी बिजली कड़क रही हो तो कौन सा ऐसा अमल है जिसे इंसान करना शुरू कर दे तो उस तक आसमानी बिजली नहीं पहुँचती? जवाब अल्लाह पाक का जिक्र। सवाल नंबर 3, आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह किस सदी के मुजद्दिद हैं? जवाब 14वीं सदी के मुजद्दिद। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते मोहम्मद अतीक अत्तारिया संजरपुर, उम्मे हसनैन अत्तारिया बहावल नगर, बिनते अब्दुल कादिर अत्तारिया सुल्तान टाउन, बिनते नदीम अत्तारिया ठोकर न्याज बेग लाहौर, ज़ैनुल आबिदीन जामी मरकजी जामिअतुल मदीना आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची, नौमान अत्तारी अरब शरीफ, गुलाम यासीन अत्तारी लिया पंजाब। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दादी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम उम्मे हसनैन अत्तारिया बहावल नगर, उनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, यौमुन नहर से क्या मुराद है? सवाल नंबर 2, हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिनों में से किसी एक का नाम बताइए। सवाल नंबर 3, अगर किसी ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद हों तो उसे कितने दुरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे